73 is not merely to perfect one's change, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. It is a great homage to a country and stand together unitedly. Our guests arrived and has received by the group of girls. Accompanied by Soma Mukherjee ma'am, Kalpana Patel, Ashita Gupta, Padma Gupta, S.R. Tiwari sir, Mamta Ojha ma'am, Deepa Raut ma'am, N.N. Biswas sir, Bhanu Pratap sir, Vivek Mishra sir, Tarun sir, Abhishek sir, Sumit sir. let us embrace together. Please stand and united once again. भारत माता की वंदे वंदे जय जय। Our black क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की घटाओं में जो सो रहे। लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की घटाओं में जो सो रहे। इस घटा के साथ साथ जिंदगी ये जिंदगी, इस घटा के साथ साथ जिंदगी ये जिंदगी। तू भी बिगुल देश के बजाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। देश के जवान तू जलाए जा, देश के जवान तू जलाए जा। हैप्पी रिपब्लिक डे। India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of men are treasured up in India only. A significant morning to one and all present over here. I myself, Sayyid Zainab Hussain of class 10C. As we all know, we are gathered here for the Republic Day celebration. This year, we are celebrating 73rd Republic Day of our country. I am excited and glad to get a chance to say something about our country. India observes
Republic Day every year on 26 January because on this day, India was declared a republic nation, and as well as our constitution came into force after long years of struggle. Do you know, with 448 articles and 12 schedules, the Indian constitution is the world's longest written constitution? Well, republic represents the supreme power of the country people living. This day marks up the celebration of the empowerment of Indian citizens to elect their own government. It is a national holiday that commemorates the process of the establishment of the Indian Constitution. Lastly, I want to end my talk with an astonishing quote. This day is a day when everyone, tall or short, young or old, light skin or dark skin, must come together to show the whole world that this nation is the best under the sun. And yes, always be proud being an Indian, because not everyone get the privilege of being born in this great, wonderful nation. Happy Republic Day. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम अलीशा यादव है और मैं कक्षा 9C की छात्रा हूँ। आज हम सभी भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हमें इनके समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन्हीं लोगों की वजह से यह मुमकिन हो पाया है कि हम एक स्वतंत्र देश में रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राज्य बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान करना चाहिए। और अंत में जय हिंद, जय भारत। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। सुप्रभात प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्र, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाती है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर हमारे देश में यह संविधान लागू किया गया था। इसी के साथ हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया था। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर
हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इसी दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह संविधान ही है जो भारत को अनेक जनजातियों और वर्गों में भी एक समान रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण होता है। उनके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और वीर चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। राजपथ पर निकले वाले झांसी को भारत में विविधता और एकता की झलक दिखाई जाती है। परेड में भारत की तीनों सेना थल, जल, वायु सेना की टुकड़ियां शामिल होती हैं और सेना की ताकत दिखाई जाती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वंदे